So onliners, I am again repeating, there are certain technical issues. So आज का जो हमारा टॉपिक है that would be related to India and Nepal relations, because our Prime Minister had recently visited Lumbini, right? One of the holiest place in the world, or one of the holiest place especially in context to Nepal, which is the birthplace of गौतम बुद्ध. ठीक है. So सबसे पहले हम इंडिया नेपाल रिलेशंस की बात करेंगे. And I was saying कि there has been certain laws in the relations since 2015. So हम उसकी भी बात करेंगे कि what are the issues, how we see that over the time China, this Nepal is going closer to China, and certainly and on the other hand there has been certain, you can say this, what over the time there has been certain gaps, you can say, okay, between India and Nepal relations, which is developing from the last 5 to 6 years. So what are the issues in between? Yes, so we'll see one by one each and everything, but before that the context that why we are taking up this topic. So the context is very much current. ठीक है. हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी लुम्बिनी होके आए हैं. ठीक है. On the 2566, remember this is 2566th death anniversary, you can say, or the Jayanti of Lord Buddha or Gautam Buddha. ठीक है. Because if you see his, I mean this, if you see the Buddha's this place of this time of birth and the whole year, between the which lies between generally 563 BC to 483. So if you count from here, remember ना कि ये चीजें रिवर्स ऑर्डर में चलती हैं. ठीक है. जब हमें BC से AD में जाना हो, ठीक है, we are not talking about AD. Currently this is AD, right? Current era, or you can say the century is of AD, right? But here from 563 to this 483 BC, it is in reverse direction, right? Going in descending order. ठीक है. So यहां से जब आप काउंट करोगे 483 से to the 2022, so somewhere the year would be around this. ठीक है. Remember इसके पहले कहीं कहीं पे मैंने देखा कि C भी लगाते हैं. C stands for circa. Okay, it's a Latin word circa, which means that we are not sure about this कट ऑफ डेट, whatever you are talking about. ठीक है. सो जहां भी हमें डाउट होता है कि हाँ ये प्रिसाइज, आई मीन दिस इज द करेक्ट और दिस इज जस्ट यू कैन से अ गेस, राइट. सो जहां भी हमें थोड़ा भी डाउट होता है वहां पे हम सी लगाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड समवेयर इन बुक्स सी दिस थिंग एंड देन बी सी. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. क्या हो गया? देखो यार कुछ सोल्यूशन देखो इसका. You are going to be future officers, so find the solution. Let it be, not going to cause any action. Overflow तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या बैठे रहो, फिर वही बात होगी, फाइल दबा के बैठे रहो. है काम करो यार. ठीक है. सो चलो हम अपना काम करते रहते हैं. ज्यादा डिस्टर्ब ना करो यार, शांति से कर दो पढ़ाई. जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? चलो. सो अभी भी क्या हुआ कि जब हम प्राइम मिनिस्टर वहां गए तो वहां पे आप लोगों ने न्यूज में जरूर देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे एक फाउंडेशन लेकर ही है, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर, व्हाट इज इट? इंटरनेशनल सेंटर फॉर yes, it's India International Center for Buddhist Culture and Heritage. It's a India International Center for Buddhist Culture and Heritage. So इसकी अभी फाउंडेशन, और यू कैन से हिंदी में जो आप शिलान्यास कहते हो किसी चीज की उद्घाटन करना है, दैट इज अ फाउंडेशन. ठीक है.
ले डाउन किया है, इसको इंडिया बना रहे हैं नेपाल के साथ मिलकर, ठीक है। दिस इज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल एंड हेरिटेज, बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। And it was the first. Yes, this is the first because this is going to be one of the internationally acclaimed or internationally you can say the very important place to attract the tourists from across the world, ठीक है। And this is called in Buddhist terminology there are two words, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, one is Chaitya and other is Vihara, ठीक है। So what is the difference between Chaitya and Vihara? Anybody onliners, किसी को कोई idea what is the difference between the two? Yes, anybody? These are the two words you find anywhere, whatever you read about the related to Buddhism and all. These are two popular words, Chaitya and Viharas. So what are they? Anybody, किसी को कोई idea onliners? Vihara. Any idea, anybody? No? Places where the Buddhist monks. Okay, so Chaitya is basically in Buddhistic, terminology is a place of worship. Place of worship. Remember always this thing. Place of, yes. And Vihara, Vihar, that is rest. This is the residence of monks. Residence of monks, ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं कहीं तो रहेंगे वो लोग। और विहारा को हम अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस IICB दैट इज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज वन ऑफ द विहारा और द मोनेस्ट्रीज, ठीक है, फाइन, which is being built with India's assistance, ठीक है। So this is the major context that what happened during this visit. So this is the current. Apart from this, we would see that what are the relations, the current relations as well as the historical backgrounds between the two countries, ठीक है। First of all, एक बहुत ही अच्छी बात कही प्राइम मिनिस्टर ने, taking into account the current, you can say the laws in our relation with Nepal, ठीक है। Prime Minister says that our relation is as strong and as ancient as the Himalayas, ठीक है। So remember this phrase is very very important because sometimes what happen, we see that in exams this phrase is ditto given in the exam, ठीक है, as a question and you could be asked to, yes. So आपको इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि what exactly it means. It means that we have a strong, either is geographical, cultural, historical or cultural relation with Nepal, ठीक है। When you talk about geographical relation with Nepal, then it means, remember when you talk about geographical, ठीक है, so geography की हम बात कर रहे हैं। Remember one thing that somewhere we share 1850 kilometers of boundary, or Nepal shares 1850 kilometers of its boundary with 5 Indian states. Anybody, any idea? Yes. एक ऑर्डर में बोलते हैं हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। Yes. Anybody? Yes. First is UK, UP, Bihar, then Bengal and then Sikkim, ठीक है। So these are the 5 states with which Nepal shares its boundaries of approximately 1850 kilometers, ठीक है। So ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, because ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम लुक आफ्टर कर देते हैं, but these are the easiest ones but seems to be a difficult one, ठीक है। So this is geography. Cultural, we know culture, the whole culture is revolving somewhere around Buddhism and Hinduism, ठीक है, because somewhere you see अभी एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जिसको हम the place of जनकपुर जो है, ठीक है, मिथिला, जनकपुर, अयोध्या, इसको भी लिंक करने की बात चल रही है, राइट। So related to Ramayana,
and especially no goddess Sita. ठीक है? ठीक है, हाँ, There is a circuit going on which is to be completed very soon. नेपाल में Yes, Nepal, that is Janakpur there, then Mithila in Bihar, and then we have Ayodhya. ठीक है, ठीक है, तो अयोध्या से बारात जाएगी वहां पे, राइट? सो इसलिए हम सर्किट बना रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज अगेन वन ऑफ द कल्चरल significance or importance that we are attaching. On the other hand, more of is related to Buddhism. So one is Buddhism, other is Hinduism. ठीक है? So this is a cultural linkages between the two. Okay, different. Even the PM said that we have cultural relation with when the Buddhists are born in the Nepal, and he has given the. Of course, I mean that's how cultural links हैं तो कैसे हैं, right? If you talk about Buddhism and Gautam Buddha, especially Lord Buddha, then how we say that we are culturally related to Buddhism? It simply means that though Buddha was born in Lumbini, that is in Nepal, ठीक है? But remember, yes, he got nirvana or enlightenment in Bodh Gaya, ठीक है? Which is in Bihar, right? Then he gave his first sermon in Sarnath, that is again in UP. Yes, near Varanasi, ठीक है? He died in Kushinagar. Kushinagar again in UP, ठीक है? So this shows the cultural importance, right? Then in the Rajgiri. राजगीर, ऑफ कोर्स राजगीर, हाँ ये विजिटेड, हाँ काफी जगह ये गए, राजगीर गए, फिर से स्तूपा भी एक, ठीक, हाँ स्तूपा, so there are, so this all shows that how we are culturally linked with each other, ठीक है? चलो, But question is that even after we are culturally we are very related, but our relations are not strong as compared to the China. see, there are many, the aspects or the factors or the limbs or the elements of any relation, ठीक है? It cannot entirely be either geographical, entirely dependent on your geography or the boundary or culture. These are called soft diplomacy, ठीक है? This is generally called soft diplomacy. So culture, though it binds, the two country or the people, right? But over the time, जैसे जैसे developments हो रही है, so relations, quite international relations are dynamic in nature, ठीक है? आपके आस पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है आपका एक्शन, ठीक है? अगर प्रोपोर्शनेटली हम नहीं कर पा रहे हैं या हमारे नेबर्स के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. वन ऑफ द मेजर इशू विद अस इज दैट वी प्रॉमिस अ लॉट बट वी डिलीवर लिटिल, ठीक है? एंड दैट टू वेरी, यस, कुछ बोल रहे हो ऑनलाइनर्स? क्या हो रहा है? अच्छा, तो लेट हो गए तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है. जल्दी आया करो भाई, हर बार लेट हो जाते हो. कोई नहीं, अभी फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है, सो ठीक है. सो हाइलाइट्स क्या है? फर्स्ट हाईलाइट ऑफ दिस विजिट इज highlights of visit. Write down small points just briefly. So highlights of the visit, उसके बाद हम आते हैं for the relations जो हमारे इस टाइम पे चल रहे हैं. So highlights of the visit is first this one, International Center for Buddhist Culture and Heritage, that is International Center for Buddhist Culture and Heritage, which is being, yes, this is going to be built with the help of India, ठीक है, in Lumbini itself, ठीक है? This is one thing. Secondly, so remember what is it? The center is basically world-class facility welcoming pilgrims and tourists across the world, from across the world, ठीक है? So हम भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. Next is hydropower projects. Hydropower projects. So Nepal में rivers बहुत है. Nepal can supply to us the electricity and vice versa. We can also supply electricity to Nepal. ठीक है? But there are certain projects. कुछ ऐसे projects हैं जो इसमें start करने की बात की गई है. There are certain projects which are in, which are delayed.
96-99 में प्रॉमिस एग्रीमेंट हुई थी, बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ. This is where there is a difference. The difference generally emerges between the India's and the China's response in terms of delivery. ठीक है, China's delivery mechanism is quite fast compared to us. ठीक है, वो जो कहता है वो करके दे देता है. अगर 5 साल कहें तो 4.5 साल में ही दे देगा. ठीक है, और 5 और 6 years. बट हम कुछ कहते हैं 5 साल में करेंगे, but generally we deliver it in 15 years. So you know the most important thing is time. ठीक है, जितनी देर में हम सोचते हैं स्टार्ट करते हैं उतनी देर में दूसरा कर देता है. But it is only due to the lack of financial. There are too many reasons, not just finances. Of course, we cannot compete with China in terms of finances. ठीक है, that is one of the biggest. Yes, that is one of the biggest issue we do accept. But yes, कुछ कह रहे हो ऑनलाइनर्स? क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, अब क्या सप्लाई? एनर्जी. अच्छा, एनर्जी सप्लाई किसी फॉर्म में, नॉट एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्लस अभी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेलवे लाइंस ये वो कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट रिमेंबर वन ऑफ द न्यूज वालों ने भी इस चीज को कोट किया, इवन कि आज तक चैनल ने भी किया है. ठीक है, सो उसमें एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई कि प्राइम मिनिस्टर जो गए उन्होंने लैंड जो गौतम बुद्ध वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां नहीं किया, लुम्बिनी में किया है हेलीपैड पे. व्हाट्स द रीजन? To know the infrastructure, what is the problem in connecting? The issue is that international airport has been built with the help of China. So it's a symbolic message that yes, समझ रहे हो बात? चाइना ने बनाई इसलिए हम वहां नहीं जा रहे. वैसे तो जाएंगे, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ऑब्वियसली जाएंगे, बट समवेयर दिस इज हाउ वी गिव मैसेज टू द अदर पार्टनर सिंबॉलिकली. ठीक है, सो विल हैव टू चेक वंस. ठीक है, क्रॉस चेक में करूंगा कि पावर प्रोजेक्ट्स कुछ उनके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. बट यस, पावर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे जरूर हैं जो चाइना फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, इफ नॉट डायरेक्टली. ठीक है, it's not direct supply from China to Nepal, but within Nepal, China is financing the infrastructure projects, including the energy sector. ठीक है, चलो तो इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 5 एग्रीमेंट्स हुई हैं. ठीक है, उसमें से एक है दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन SJVN सतलुज जल विद्युत निगम. ठीक है, SJVN एंड NEA, that is Nepal Energy Authority, that is Nepal Electricity Authority, sorry, that is Nepal Electricity Authority. So basically this among 5 agreements, this is one of the agreement, ठीक है, which has been signed between Nepal and India with respect to the 2 agencies which would implement this project or the agreement, that is SJVN, that is Satluj Jal Vidyut. Vidyut is basically electricity. ठीक है, so this is Jal Vidyut Nigam Limited. ठीक है, and the other is Nepal Electricity Authority for development and implementation of 490 megawatts Arun 4 hydropower project. 490 megawatts Arun is river in eastern Nepal. Arun 4, this is 4th project, hydropower project on the river Arun. So that's why this is a 4th. ठीक है, so Arun 4 hydropower project. ठीक है, which is to be implemented by these 2 agencies, one from India and other from Nepal. ठीक है, clear onliners? Yes, sir. Okay, next point is setting up a satellite campus. Setting up, this is the second point. The third point is the highlights we are talking about it. So this was the third point of this hydropower projects. The third point is setting up a satellite campus of IITs. Satellite campus of IITs.
satellite campus of yes, of IIT. What is satellite campus? What do you understand by satellite campus? क्या यहाँ पे सिंगल टी आएगा? Any idea, anybody? What do you understand by satellite campus? सैटेलाइट क्या होता है पहले ये बताओ, छोड़ो कैंपस, सैटेलाइट एनीथिंग, Satellite which captures the movement of the any planet. सो रिमेंबर सैटेलाइट कैंपस का मतलब ये कि ओरिजिनल जो हेड ऑफिस है वो नहीं बल्कि उसका एक ब्रांच ऑफिस, राइट? इफ दिस इंस्टीट्यूट, राइट, दिस इज इंस्टीट्यूट व्हिच इज ओरिजिनली बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन Chandigarh sector 36, but if you are opening a branch of this institute in future somewhere else, we can say that that branch is a satellite campus of this particular institute. ठीक है? So this is a satellite campus, ठीक है, of IITs. So ये भी है कि हम अपने IITs जो भी हैं उनके एक satellite campus open करने वाले हैं नेपाल में, ठीक? Next is पंचेश्वर multi-purpose project, पंचेश्वर. फोर्थ वन इज पंचेश्वर, पंच लिखो, पंच, उसके बाद ईश्वर, पंच ESHWAR, पंचेश्वर, पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है? अगेन दिस इज सीम्स टू बी मोर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काइंड ऑफ, ठीक है? बाकड़ा नंगल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है? सो ट्राई टू रिलेट द थिंग्स. नाउ नेपाल डिस्कस दिस, आई मीन ब्रॉट दिस टॉपिक टू द डिस्कशन टेबल बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज पेंडिंग, ठीक है, सिंस 1996. इस पे बात बन गई थी 1996 पे, हमने एग्रीमेंट कर ली थी, बट हम अभी तक इसको कंक्लूड नहीं कर पाए, फाइनल ग्राउंड पे नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट, ठीक? सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट 1996 का प्रोजेक्ट अभी तक डिले हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीशन ही नहीं हुई. गेटिंग दैट? सो जब आप डिबेट्स देखते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे राज्यसभा पे डिबेट्स आती होती हैं, स्पेशली आई मीन रिलेटेड टू स्पेशली रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. सो अराउंड 8:30 या 9:30 के अराउंड डिबेट्स आते होते हैं वहां पे, ठीक है? सो वहां पे जब आप देखते हो तो एक बहुत ही रिपीटेड लाइन सुनने को मिलता है, वो ये कि हमारी जो एक सबसे बड़ी कमी है वो ये कि हम प्रोजेक्ट्स को डिले कर देते हैं, हमारे नेबरिंग, खास करके नेबरहुड जो भी कंट्रीज, ठीक है? चाइना बहुत फास्ट डिलीवर करता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ गया, जो आई मीन दिस इज एक्सेप्टेबल पॉइंट दैट वी कैन कम्पीट विद चाइना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और डिलीवरी और टेक्नोलॉजी, बट स्टिल वी विल हैव टू ट्राई, यू नो, कम से कम 1996 के प्रोजेक्ट को आप 2026 में थोड़ी कंप्लीट करोगे. गेटिंग दैट? 30 इयर्स बाद तो नहीं करोगे कंप्लीट, एटलीस्ट अगर ये 5 साल में कंप्लीट होने वाला था तो 6 साल में कर दो, 7 साल में कर दो, ठीक है? यस, बट इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इफ यू सी अराउंड, यू नो, स्पेशली इन द नेबरिंग कंट्रीज, इफ यू सी the many of the projects which must have come to India has been hijacked by China. So उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलेगा, दैट इज अनडिनाइबल फैक्ट, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग. इसको आई मीन डिस्कशन के लिए नेपाल ने लाया एंड नेपाल सेड कि इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है, विच हैज ऑलरेडी बीन डिलेड, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा. सो these are 3-4 points of your current highlights of the recent visit of our Prime Minister, ठीक है, which has been discussed or concluded or such kinds of agreements. Now the biggest I mean this topic for us is the India's and Nepal ties since beginning, ठीक है? तो historically कैसे रहे? So remember our relation with Nepal depends on one of the treaties. And that treaty is called the Treaty of नहीं है, Treaty of
पीस एंड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ईयर क्या है? दिस ट्रीटी इटसेल्फ इज द बेडरॉक ऑफ इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, ठीक है, ऑफ 1950, ठीक है। सो इसके ऊपर ही हमारी सारे रिलेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी ट्रीटी काफी पुरानी हो गई है। नेपाल चाहता कि हम इसको, इवन वी वांट कि हम इसको अमेंड करें, थोड़ी चेंजेस करें इसमें, बिकॉज 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो इनके जो भी कंडीशनैलिटीज हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। फाइन, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ट्रीटी फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ आवर रिलेशन, ठीक है। जो भी हमारे रिलेशंस आज के टाइम में है चाइना देश नेपाल के साथ, वो सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, दिस सिंगल ट्रीटी, ठीक। ये सब ठीक है कि नेपाल हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, कल्चरली हिस्टोरिकली उसके हम बात कर चुके हैं कि हमारी कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो द नीड ऑफ आर इज टू इंप्रूव आवर रिलेशंस, ठीक है। बट रिलेशंस बिगड़ेंगे क्यों, पहले भी तो पता हो, ठीक। सो कल्चरली हम बात कर चुके हैं, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म की काफी अच्छी टाइज देखने को मिलती है हमारे को। बुद्धिज्म आई मीन फ्रॉम रामायण साइड जहां से हमने बात की, एंड अदर साइड फ्रॉम गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म साइड, ठीक है। सो एक कल्चरल एसिमिलेशन देखने को हमें मिलता है दोनों हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फ्रॉम 2015 onwards there has been lows in our relation with Nepal। ये हमारे लिए समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। कि क्यों अगर खराब हो रहा है ओवर द टाइम, तो क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस। सो सिंस 2015, अगर आप लोगों को किसी को याद हो, थोड़ा बहुत आपने देखा हो, तो एक सिविल वॉर काइंड चल रही थी नेपाल में 5 years, आई मीन 2015 में। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। सो ठीक है, हाँ। सो 2015 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वहां पे कम्युनिटी है, दैट इज कॉल्ड मधेसी, ठीक है। सो मधेसीज आर बेसिकली somewhere they find their this ancestral, yes, from Bengal, trace their ancestral relation from somewhere from Bengal। कहते हैं कि उनके जो एक गुरु महाराज हैं, जो भी हैं, वो बंगाल से ही थे, वो बाद में चले गए थे वहां पे, ठीक है, समवेयर या इस तरीके से, ठीक। सो आई मीन समवेयर मधेसी कम्युनिटी जो है वो इंडिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग एक सिंक्रेटिक रिलेशन है, ठीक है, या अपने आप को एसोसिएट करते हैं, ठीक है। सो उनकी जो भी इश्यूज हैं, जैसे सेम आप पहले ड्रॉ कर सकते हो तमिलियंस के साथ जो श्रीलंका में, उनमें भी एक जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो एक सेक्शन है जिसको हम हमेशा रेज करते हैं, सो दैट ही गिव इक्वल एंड इक्वल राइट्स, ठीक है, टू द तमिल्स एज वेल, ठीक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बेसिकली, ठीक है। सो इसी तरीके से हम मधेसी के साथ स्टैंड लेते होते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आप फ्रेम करो उसमें सबके लिए कुछ कुछ हो, सबके लिए राइट्स एंड रेगुलेशंस हो, सब अपने, ठीक है। सो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पे एलिगेशंस लगे उस टाइम पे कि इंडिया इज इंटरफियरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल, ठीक है, इंडिया इज इंटरफियरिंग इन इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल, ठीक है। दिस वाज ब्लेम्ड व्हिच हैड बीन पुट अगेंस्ट द इंडिया, ठीक है। बेसिकली इस टाइम पे ये हुआ था कि जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रही थी उसमें कुछ डिमांड्स थे, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज अपनी डिमांड्स करती है, उसमें मधेसीज ने भी डिमांड किया, काफी ने डिमांड किया। सो उसमें ये था कि किसी कम्युनिटी की बात को मानी, किसी की नहीं मानी, तो उसमें ये एलिगेशन लगे कि इंडिया ने इंस्टिगेट किया, इनको भड़काया, गेटिंग दैट। सो उस टाइम पे हमारे ब्लेम्स लगे, तब से हमारे कहीं ना कहीं रिलेशंस ओवर द टाइम खराब होते चले गए, टिल द टाइम जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है वो ऑफिस में आए, ठीक है, इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे तब तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज द फर्स्ट एलिगेशन, ठीक है। सेकंड एलिगेशन एक हमारे को और लगा कि इन सब प्रोसेस जो चल रहा था, ड्राफ्टिंग एंड ऑल प्रोटेस्ट एंड काइंड ऑफ सिविल वॉर, नॉट एग्जैक्टली सिविल वॉर बट काइंड ऑफ सिविल वॉर यू कैन से इन नेपाल। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि हाँ, इंडिया ने ब्लॉकेड कर दी, एक ये भी एलिगेशन लगा, ब्लॉकेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई, फूड सप्लाई। कहते कि जो ट्रक्स गए उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया, नेपाल में एंट्री नहीं करने दी।
सो क्या ये एलिगेशन हमारे पे लगी कि इंडिया ने जानबूझ करके ये ब्लॉकेड की, एंड दैट वाज कॉल्ड अनऑफिशियल ब्लॉकेड। एक तो डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड होता है कि हाँ अगर व्हीट महंगी होगी इंडिया में तो हम एक्सपोर्ट्स को बैन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिक्लेयर्ड स्टैंड कि हाँ सबको पता है कि हमने इंडिया ने रोक लगा दी। बट दिस वाज टर्म्ड एज अनऑफिशियल ब्लॉकेड, हमने कुछ कहा नहीं बट हमने अलाउ भी नहीं किया, वेदर इट्स पेट्रोल सप्लाई, पेट्रोल प्रोडक्ट सप्लाई और योर फूड सप्लाईज, ठीक है। सो ये भी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे, एंड तब से देयर वाज अ काइंड ऑफ रिजेंटमेंट और feeling of you can say I mean not a good feeling of the people of Nepal towards India, ठीक है। तो तब से एक रिजेंटमेंट इंडिया के अगेंस्ट शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद 2017 में नेपाल की साइड से कुछ दिक्कत आई, एंड 2017 में नेपाल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एंड दैट वाज ऑफ ज्वाइनिंग BRI। व्हाट इज BRI? What is BRI? Belt and Road Initiatives. China's Belt and Road Initiatives, BRI. In 2017, Nepal signed this agreement to join formally the BRI, which we or the India is not party to this whole project, ठीक है, because somewhere इसी BRI का एक पार्ट है। BRI you understand ना, Belt and Road means हाँ trying to connect all of the world. हाँ बेसिकली बेल्ट एक String of pearls and necklace. यस इंटरकॉन्टिनेंट एज वेल एज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू ओशन हो, Yeah. ठीक है, जैसे हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड ऑल, एंड सागरमाला इज फॉर ओशन, ठीक, हाँ कनेक्टिंग पोर्ट्स। सो इस तरीके से सो BRI बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू कि अलग अलग कंट्रीज में हाईवे बनाने, रेलवे ट्रैक्स बिछाने, ये सब करेंगे, ठीक है, इवन द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। सो इसमें क्या हुआ कि BRI का ही एक पार्ट है, वी कॉल्ड इट यस एग्जैक्टली वही मैं लिखने लगा था, CPEC, ठीक है, CPEC, ठीक है। सो इसी का पार्ट जो है योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच पासिस फ्रॉम Pakistan. एग्जैक्टली POK। आई मीन इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, कुछ रीजंस तो होंगे ना। मोर देन 50 कंट्रीज हैव जॉइन्ड दिस प्रोजेक्ट, सो हमने क्यों नहीं किया। सो दिस CPEC दैट इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इज बेसिकली पासिंग थ्रू POK, ठीक है, हाँ, एंड going towards Gwadar port, connecting Gwadar port. So basically the issue is that this is because we as India doesn't recognize this territory to be the part of Pakistan, but it's ours, which has been occupied by Kashmir. That's why we call it Pakistan occupied Kashmir. This is the illegal occupation, ठीक है। So this is somewhere India time and again says that China is somewhere interfering in internal matters or the bilateral matters, first thing. Secondly, this is against the principle of sovereignty, ठीक है। Sovereignty is internal or external interference in domestic matters, ठीक है, और among the between the two countries, ठीक है, especially in our country domestic matters. So इस वजह से इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, बट नेपाल ने किया। सो इसका भी एक इफेक्ट होना था, ठीक है। सो इसका भी इम्पैक्ट somewhere Nepal is being inclined towards China. Nepal is going closer to China and getting away from us, ठीक है। So from there on the gap जो था वो और वाइडन होता चला गया, ठीक है। स्पेशली द प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे इनके KP ओली, ठीक है, तो उनके टाइम पे ये गैप और बढ़ता गया बिकॉज ऑफ हिज स्टांस एंड क्लोजनेस विद चाइना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो अभी लेटेस्ट 2019 में आया जस्ट बिफोर कोरोना, दैट वाज नेपाल रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमारी 4 टेरिटरी इंडिया की उसने अपनी दिखा दी, ठीक है, कि वो हमारी जैसे चाइना भी करता होता है ना, अरुणाचल को अपने मैप में दिखा देता है, हाँ। सो इसमें 4 जो टेरिटरीज थी, दैट इज 3 फ्रॉम उत्तराखंड, 1 फ्रॉम बिहार। फर्स्ट इज कालापानी, जो 4 टेरिटरीज थी जो पॉलिटिकल मैप में नेपाल ने दिखाया, जो इंडियन टेरिटरीज है,
उसमें से फर्स्ट इज योर लिपू लेक, लिपू लेक, सेकेंड इज योर, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है लिखने में, ध्यान से लिखना। हाँ, लिम्पी, लिम्पिया, धूरा। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों कहां से हैं आपके? उत्तराखंड। ठीक है, एंड द फोर्थ टेरिटरी विच वाज शोन इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल, प्लेस कॉल्ड सस्ता, सुस्ता और सस्ता, दैट इज इन द वेस्टर्न ऑफ बिहार। ठीक है, सो ये चार प्लेसेस ऐसे थे जिसको दिखाया नेपाल पॉलिटिकल मैप में एज अ टेरिटरी। ठीक है, अगेन यहां पे इश्यूज हो गई। उसके बाद इशू ये है कि जो % ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना है दैट हैज बीन डिमार्केटेड और सॉर्टेड। ठीक है, जस्ट 2% बाउंड्री एरियाज ऐसे हैं। ठीक है, स्पेशली द टू रीजन्स, वन इज दिस सस्ता एंड सेकेंड इज योर काला पानी। ठीक है, ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे इश्यूज हैं जो क्लियर कट डिवीजन नहीं है। बेसिकली ये वो एरियाज हैं जो अंग्रेजों ने 1816 में डिमार्केट की थी एंड तब से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने इसको एज इट इज ही इनहेरिट कर लिया। ठीक है, समझ रहे हो? सो जो ब्रिटिशर्स ने करके गए उसी को हमने एज इट इज इनहेरिट किया, एक्सेप्ट किया एंड तब से ये इश्यूज काला पानी एंड सुस्ता का बना हुआ है। ठीक है, सो आउट ऑफ 4 जो उसने दिखाया, अगर 2 दिखाता तो हम मान भी लेते कि चलो दिस आर कंटेंशियस इश्यूज और डिस्प्यूटेड है, क्लियर कट नहीं है तो ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये तुम्हारा है, बट वो होता है ना कि अगर कुछ गड़बड़ी है, डिस्प्यूटेड है तो दोनों कंट्रीज दिखा सकती हैं। इतना तो है क्योंकि डिस्प्यूटेड है, कोई भी कुछ भी कह सकता, बट इसने 4 के 4 दिखा दिए। सो यहां से अगेन इश्यूज होगी। चलो, सो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट व्हाट एवर वी आर टॉकिंग, ट्रीटी है जिसपे हमारी रिलेशन जो बेडरॉक है ट्रीटी हमारी, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज पुरानी हो चुकी है, नो डाउट हम नहीं कह रहे हैं, बिकॉज दोनों कंट्रीज ने मिड 1990s में खुद ये एक अग्री की थी दोनों कंट्रीज ने कि हमें इसको रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, बट सिर्फ बात की थी, तब से भूल गए हैं, शायद याद नहीं है, तो उसको याद करके रिवाइज करने की जरूरत है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू एक और रहा है वो है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन इश्यूज इसमें यह है कि नेपाल का एक आम व्यक्ति भी 25,000 इंडियन रुपीज रख सकता है लीगली। ठीक है, अलाउड है, जो 25,000 इंडियन करेंसीज को रख सकता है। ठीक है, एज अ कैश। ठीक, बट जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने रिफ्यूज कर दिया कि हम उसको करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड ये कि नेपाल की जो राष्ट्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, उसके पास 7 रुपीज थे। ठीक है, या जो पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है, टोटल ऑफ पब्लिक होल्डिंग नेपाल दैट वाज समवेयर अराउंड मोर देन 500 crores। कहा कि एक्सचेंज करो नेपाल के सेंट्रल बैंक ने, बिकॉज वो तो फिर लीगल टेंडर नहीं रह गए थे ना 1000 and 500 के नोट्स। तो जो इनके पास इतने 500 करोड़ रुपए पड़े हैं उनका क्या करेंगे ये? ठीक है, इंडिया वालों ने तो सबने कर दिया साफ, पर वो क्या करेंगे? ठीक है, सो इंडिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिमोनेटाइज बिल्स। ठीक है, एंड नॉट हेल्प इन सिक्योरिंग इट। अगर हमने हेल्प नहीं की तो ऑब्वियसली लोगों के बीच में पैसा जो है वो एक आम इंसान से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने डिनाई किया तो मैसेज तो यही गया आम लोगों के बीच में कि हाँ इंडिया ने मना कर दिया। सो कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो लोगों के बीच में हमारी इमेज है, वो कहीं ना कहीं खराब तो हुई। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अगेन मेजर रीजन व्हाई recently we see there has been certain laws in the relation between India and Nepal। ठीक है, सो ये recent the current issues हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशन थोड़े ठीक नहीं चल रहे। ठीक है, सो इसमें यस
क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इंडिया ने मना कर दिया तो ऑब्वियसली वो पैसे तो अपने सेंट्रल बैंक को देगा, तो सेंट्रल बैंक तो उसका दे सकता है उसके बजाय, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो सारा पैसा आएगा वो सेंट्रल बैंक के पास आएगा, बिकॉज आम जनता तो इंडिया से एक्सचेंज कर भी नहीं सकती ना, सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक ही करती है एक दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल को ही हमने मना कर दिया कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। सो इसकी वजह से करोड़ ऑफ रुपीज उनके एज इट इज पड़े हुए हैं, ठीक है। सो उसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए, बिकॉज 500 करोड़ रुपीज बहुत कहेंगे नेपाल वाले। हमारे देखो, अगर आपके अगेंस्ट कुछ सेंटिमेंट चल रही है, ठीक है, तो आप ठीक कहोगे ना कि हाँ यार थर्ड बंदे की वजह से ये गड़बड़ी है, हमारी वजह से नहीं है, ठीक है। तो आम जनता को तो यही समझाओगे पॉलिटिकल रैलीज में, समझ गए। वोट्स तो देश से ही चाहिए, देशवासियों से ही चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी इमेज खराब हुई है जनता के बीच में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में हमारी इमेज बहुत अच्छी है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पे बनाए हैं, तो उसकी वजह से जो वहां की जनता है उसके बीच में इंडिया की इमेज काफी अच्छी है, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी इमेज कैसी है दूसरी कंट्री में। दूसरा जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज अर्बन हीट आइलैंड्स। पढ़ा किसी ने पेपर में? क्या होते हैं टेम्परेचर कॉमन जगह पे 15 to अर्बन हीट आइलैंड? बहुत ज्यादा हो गया यार। 3 डिग्री नहीं नहीं, इतना भी नहीं। अर्बन हीट आइलैंड्स होती क्या है सबसे पहले? सो अर्बन हीट आइलैंड, अगर सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में लेमन की बात करें तो कोई concrete, made of concrete, where the heat is trapped and not able to dissipate easily, where the heat is trapped and not able to dissipate easily. Dissipate, dissipate, PAT, ठीक है, इजिली। सो बेसिकली जैसे ये है, ठीक है, ये कमरा है, ठीक है। देखो एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, जनरली ये कहा जाता है कि जब भी छत जो है, जो टेरेस है, ठीक है, या जो रूफ है, उसकी जो कलर है वो हमेशा या तो लाइट रखनी चाहिए, व्हाइट रखनी चाहिए। व्हाई? एग्जैक्टली, जो लाइट कलर्स होती हैं, स्पेशली द व्हाइट, एक टर्म है इसके लिए, दैट इज एल्बिडो। व्हाट इज इट? यस, एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है कि जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट कर पाते हो वापस इन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। सनलाइट पड़ रही है किसी प्लेस सरफेस पे, जैसे इस छत पे पड़ रही है सनलाइट सपोज, ठीक है, और ये छत व्हाइट कलर का है, ठीक, व्हाइट है, सो यहाँ किसी लाइट कलर का है, तो इसकी एल्बिडो काफी अच्छी खासी होगी। मीन्स एल्बिडो मीन्स the capacity of that particular surface to reflect back whatever radiation it has been received, ठीक है, and वो रिफ्लेक्ट कहां करेगा वापस? एटमॉस्फेयर में जहां से आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ। सो एल्बिडो का ये है कि अगर कोई लाइट कलर हो या व्हाइट कलर हो, ठीक है, उसकी एल्बिडो बहुत अच्छी होगी, बट वहीं पे अगर कोई डार्क कलर हो उसकी एल्बिडो बहुत पुअर होती है। इसलिए हमेशा इनमें एग्जांपल दिया जाता है आइस का, ग्लेशियर्स या आइस की। जैसे आइस जो है, कहते हैं कि आइस पे जब भी सनलाइट पड़ती है तो उसकी एल्बिडो बहुत अच्छी होती है, यू नो, उसकी रिफ्लेक्टिविटी इतनी होती है कि जो पड़ेगी वो मोर देन 90% उसकी वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। ट्रैपिंग बहुत कम होती है इसमें, समझ रहे हो। सो बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग, अगर ट्रैपिंग ही नहीं होगी तो हीट कहाँ से होगी, समझ रहे हो। डार्क कलर क्यों कहा जाता है कि सर्दियों में आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गर्मियों में, सॉरी, इस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्यों कहा जाता है कि ब्लैक कपड़े ना डालो, ट्राई टू व्हाइट डालो। पॉइंट नहीं कर रहा ठीक है, बट दिस इज जनरली सेड कि व्हाइट या कोई लाइट कलर डालो, ठीक है, गर्मियों में जब भी बहुत ज्यादा सनलाइट होती है उस टाइम पे।
क्योंकि वाइट कलर है या जो लाइट कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर है वो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, तो इस वजह से हीट जो है वो आपकी बॉडी में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता। गेटिंग दैट? सो बिकॉज ऑफ एल्बिडो इफेक्ट ऑफ योर सरफेस, वट एवर सरफेस इट इज, आइदर इट्स लाइट और डार्क, ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी हीटिंग एंड कूलिंग भी उस हिसाब से होती है, ठीक है, गर्म होता है सरफेस उस हिसाब से, ठीक है। या कंक्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे पेमेंट्स आप पार्कों में देखते हो, पेमेंट्स लगा रहे हैं, या जैसे हर चीज कंक्रीट की बन रही है, खास करके शहरों में बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जितनी ज्यादा कंक्रीट करते जाओगे उतनी ज्यादा ट्रैपिंग कम होगी, ठीक है। सो अगर कुछ भी ग्रीनरी नहीं है अराउंड, या कुछ इस तरह के प्लांट्स नहीं है, जो भी है ट्रीज नहीं है, सो उस वजह से क्या होगा कि एल्बिडो इफेक्ट अगेन जो कंक्रीट की है वो अंदर ट्रैप ही नहीं होने देती, वहीं पे रहती है। जब भी आप अगर इस टाइम पे गर्मियों में कहीं पे कंक्रीट की कोई भी सरफेस हो, उस पे नंगे पांव चलना, फिर पता लगेगा, ठीक है। हाँ, सो छाले पड़ जाएंगे, समझ गए। सो इसलिए क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा वो है कि वो जो सनलाइट है वो अंदर जाती ही नहीं, ट्रैप नहीं हो पाती, ठीक है। गेटिंग दैट? उसकी जो एल्बिडो है बहुत कम है। चलो, तो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। टेम्परेचर वेरिएशन जो है, जैसे हमने कहा कि कुछ पॉकेट्स, सर्टेन पॉकेट्स आपके सिटीज के होते हैं जहां पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली नॉर्मल से ज्यादा होगी, तो वो जो वेरिएशन टेम्परेचर की है दैट इज बिटवीन 3 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल अगर आपकी सिटी की टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो जो जहां पे ये चीज हम अर्बन हीट आइलैंड्स देखने को मिलेगा, अगर हीटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, इस इट मीन्स कि उन पर्टिकुलर पॉकेट्स में आपकी जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री ज्यादा होगी, ठीक है। अभी भी अगर आप चंडीगढ़ में अभी देखोगे टेम्परेचर, और आप अभी इस टाइम पे सुखना के बैक में जाओगे, ठीक है, या रॉक गार्डन के बैक वाली साइड जाओगे, ठीक है, तो आपको एकदम से काफी कूल सा वो लगता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। आप लेक से सिर्फ 500 मीटर नीचे जाओगे बैक साइड, तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस पता लग जाता है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री की वेरिएशन होती है बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। चलो, सो कॉजेज क्या है? कॉजेज में अगेन वही सब आ जाएगी, मैनीफोल्ड इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंक्रीट हम करते जा रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, पेड़ पूड़ सब काटने शुरू कर दिए। सो ऑब्वियसली ग्रीनरी अगर नहीं है तो सारी जो हीट है वो कंक्रीट में ही रहेगी, ठीक है, कौन, हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। उसके बाद डार्क सर्फेसिस जिनकी एल्बिडो ऑलरेडी लो होती है, ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इनकी एल्बिडो डिक्रीज होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, रिफ्लेक्शन कम होगी, ठीक है। जो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी वो सब कुछ अपने पास ही रख लेगी ना, तो रखेगी तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की हीटिंग उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। आपको जितना मिल रहा है उसमें से आपने कितना वापस कर दिया, ठीक है, डिपेंड करता है इस पे कि हीटिंग और कूलिंग कितनी होगी, ठीक, इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। उसके बाद एयर कंडीशनिंग। हाँ, एयर कंडीशनिंग क्या होते हैं? एयर कंडीशनिंग जैसे ये है, अब ये क्लोज रूम है, ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरीके से डार्क है, ठीक है, डार्क होगी, तो और इससे भी एक मजेदार बात है कि कभी भी ना घर पे कूलर या ऐसे चल रहा हो तो कभी भी उसके बैक साइड में जाके देखना, या फ्रिज के बैक साइड में जाके देखना, पता लगेगा कि आपको गर्मी कितनी होती है, ठीक है। सो ये चीजें भी बहुत ज्यादा गर्मी, अब वो चीजें जो गर्मी करती है वो गर्मी निकलती नहीं है हवा ना, जैसे एसी का है, एसी का जो बाहर लगा होता है, ठीक है, हाँ, तो उसमें से एग्जॉस्ट से क्या होता है, वो एटमोस्फेयर से हवा को खींचता है, ठीक है, ठंडी हवा को, गर्म को छोड़ता है, ठीक है। सो इस वजह से भी जब ये मिक्सिंग होती है दोनों एयर की, तो कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग वाली एरिया है वो ज्यादा हीट हो जाती है, हीटिंग होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी आपके कभी उस पीछे जहां भी लगा है उन एरियाज में जाकर देखना, आपकी कमरे से उस एरिया की टेम्परेचर ज्यादा होगी, ठीक। उसके बाद अर्बन आर्किटेक्चर, टॉल बिल्डिंग्स हैं, इसको एक ना टर्म है जो आप लोग देख लो, वी कॉल इट अर्बन कैनियन इफेक्ट, एक टर्म है जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, टावर्स बन रही है, उसके लिए वी कॉल्ड इट अर्बन कैनियन इफेक्ट। व्हाट इज इट?
अर्बन कैनियन इफेक्ट। इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि जो जैसे दो हाई राइज आपने बिल्डिंग्स बना दी है, ठीक है, यहाँ पे दो टावर्स बना दिए सपोज। अब ये जो पैसेज है, नैरो पैसेज, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हवा को सर्कुलेट होने के लिए जो एरिया चाहिए वो कम हो गया। एक है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये बिल्डिंग से यहीं यहीं तक है, तो हवा के पास एरिया काफी है सर्कुलेट होने के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो हवा ठंडी है उसे मिक्स होने के लिए, ठीक है। बट अगर आपने जैसे आजकल शहरों में बन रही है बिल्डिंग, टावर्स टावर्स टावर्स, तो टावर्स बनने की वजह से अगर साथ साथ दो टावर्स बन गए तो जो ये नैरो पैसेज वे है, ठीक है, इसके बीच में, वहां पे कहीं ना कहीं जो आपकी एयर, हाँ एयर की है वो ट्रैप्ड हो गई, ठीक है, चाहे वो गर्म हवा हो, गर्म ही होगी, ठंडी तो होगी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से अगर हवा नहीं आ रही फ्रेश तो गर्म ही रहेगी, ठीक है। तो बिकॉज इनके पास एसी भी लगे होते हैं भारी भरकम से सब हर फ्लोर पे, तो सारी इधर ही छोड़ेंगे हवा, ठीक है। तो अगर इस पूरे में अगर सरफेस जो आई मीन इनकमिंग एयर है वो अगर फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो ये सारा जो नैरो है इसमें सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है वो आपकी कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन पर्टिकुलर एरियाज में आपकी हीटिंग ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड अर्बन कैनियन इफेक्ट, ठीक है, जिसमें आपकी नेचुरल कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ नेचुरली आपकी कूल एयर आ नहीं रही वो, ठीक है, उस अमाउंट में जितनी आ सकती थी अगर ये बिल्डिंग्स इतनी ही होती, कुछ फ्लोर्स कम होते, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, हवा यहाँ से जाती फिर जैसे सर्कुलेट होती, यहाँ से मिक्स होती ठंडी हवा के साथ और फिर घूम के इधर आती। बट आपने इतना इसको लंबा कर दिया कि इसको पैसेज ही नहीं मिला जाने का। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, वो तो होगा, ऑब्वियस ही होगा ना, जो सबसे ऊपर होगा वो तो सबसे ज्यादा गर्म होगा। इसलिए सिर को ठंडा रखना चाहिए, जनरली गर्म बहुत होता है। वो तो करेगा ना, सेम बिल्डिंग में करेगा, बिकॉज जो भी हीट आ रही है वो नीचे तक तो पहुंच नहीं रही ना, इसलिए कहा जाता है कि रूफ एंड टेरेसेस को व्हाइट पेंट करो या लाइट कलर पेंट करो, ठीक है। तो घर बनवाओगे तो ध्यान रखना इस चीज का, जो पड़ा है उसको यूटिलाइज भी करना है कहीं। हाँ बट ये सब, ये जो फिनोमिना है, ये जो सारी चीज है, ये एक रिपोर्ट नासा की एक सैटेलाइट इमेज के थ्रू आई है, एंड उसका नाम है इको स्ट्रेस, जिसके बेसिस पे हमें पता लगा है कि इंडिया में कहाँ पे ये फिनोमिना हमारे को देखने को मिल रहा है। सो वी कॉल इट इको स्ट्रेस। अगर इंडियन एक्सप्रेस किसी ने पढ़ी हो तो उसमें इमेज भी आई हुई थी, बिल्कुल फर्स्ट छोटा सा लेफ्ट कॉर्नर फर्स्ट टॉप में, ठीक है। सो NASA said that India's urban heat islands, what NASA said about India's urban heat island. So NASA की जो ये इको स्ट्रेस है, फुल फॉर्म इसके लिखो, NASA's इको स्ट्रेस, फुल फॉर्म इसका क्या है? इकोसिस्टम स्पेस बॉर्न, इकोसिस्टम स्पेस बॉर्न, BORN, बॉर्न, थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट, इसी में कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लाइन, which revealed a massive red spot, over Delhi and some periphery as well, ठीक है, I mean the neighboring areas of Delhi as well, ठीक है, over Delhi and a smaller, this one is massive and the other smaller red spots around neighboring cities, I mean the neighboring cities of Delhi, particularly सोनीपत, पानीपत, जिंद एंड भिवानी, ये चारों ही हरियाणा में है आपके। और इस टाइम पे सिरसा जो है हरियाणा का, वो इंडिया में ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे चल रहा है हीट में, उसकी टेम्परेचर अराउंड 46 डिग्री चल रही है, 47 है, 46 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो NCR वाले रीजन्स में है एरियाज, वो काफी
वहां पे हमें ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेड स्पॉट्स क्या होते हैं? रेड स्पॉट्स बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द हायर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, that is it indicates greater temperatures, that is the incident of urban heat islands। ठीक है, कि हीटिंग कितनी हो रही है, नॉर्मल से आपकी टेम्परेचर जो डिविएशन है वो कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरियाज में, टू विच वी हैव मार्क रेड स्पॉट्स। ठीक है, क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज छोटा सा है, आईएनएस सूरत एंड फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस, ये दोनों दो सेपरेट प्रोजेक्ट्स के अंडर हैं, तो हम वन बाय वन बात करते हैं। आईएनएस सूरत, पहले हम आईएनएस सूरत की बात कर लेते हैं, फिर हम आईएनएस फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी की बात करेंगे। सो आईएनएस सूरत क्या है? सूरत बेसिकली इज द फोर्थ, सूरत इज द फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट, सूरत इज फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स। 15B डिस्ट्रॉयर्स एक हमारा प्रोजेक्ट है, वी कॉल इट प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15A भी आ चुका है, तभी इसका नाम B है, वो भी हम देखेंगे कि व्हाट इज इट 15B। ठीक है, जस्ट राइट द इंट्रो लाइन दैट सूरत इज द फोर्थ शिप ऑफ Project 15B destroyers, which heralds a significant makeover, of the project or the P15A। Remember हम प्रोजेक्ट की जगह पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं P15B। So this is a updated version of your P15A। ठीक है, P15A, इसके ब्रैकेट में लिखो कोलकाता क्लास, कोलकाता क्लास, ब्रैकेट क्लोज, डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, अब ये फोर्थ है। ठीक है, तो इसके पहले तीन और आई होंगी। तो फर्स्ट जो थी दैट वाज विशाखापट्टनम, फर्स्ट शिप वाज विशाखापट्टनम which had been commissioned in 2021, the last year only। second had been the Mormugo पोर्ट है यहाँ पे, मोरमुगो पोर्ट। and next is third is Imphal, INS Imphal। so these two has been launched and are on trial। ठीक है, yes, विशाखापट्टनम had already been commissioned। ठीक है, एंड फोर्थ अभी हमने लॉन्च कर दी है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 4 शिप्स बननी थी वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और फाइनली इनकी कमीशनिंग सबकी 2024 तक हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सो सूरत यू नो कि नेम्ड आफ्टर कमर्शियल कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, दैट इज सूरत, एंड इट इज द कमर्शियल हब ऑफ इंडिया, द सेकंड कमर्शियल हब आफ्टर बॉम्बे। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B है क्या, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। सो रिमेंबर दिस शिप्स जो हम बना रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 15B, दीज आर मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ठीक है, these are most technologically advanced, ठीक है, ships। बेसिकली these are guided missile destroyers। ठीक है, अगर कोई हमारे पे एनिमी कंट्री अटैक करती है यस मिसाइल से, तो इसमें ऐसे वेपन्स लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर डिस्ट्रॉयर्स, इसलिए इनका नाम है डिस्ट्रॉयर्स है। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स with the state of the art technology। remember state of the art technology का मतलब क्या होता है? state of the art technology का मतलब होता है कि इस टाइम पे, उस प्रेजेंट टाइम पे जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसको हमने यूज किया है उसके बनाने में। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कि प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसको हमने यूज किया है। ठीक है, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स होंगे इसमें। स्टेल्थ, यू अंडरस्टैंड, स्टेल्थ इज बेसिकली स्केपिंग मैकेनिज्म, जिसमें आप रडार को चकमा दे देते हो। ठीक है, रडार के कब आपको लोकेट नहीं कर पाता। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस द 4 ships which has been completed under project 15B। ठीक है, सो रिमेंबर दीज आर द हाईटेक ones।
2011 में इसकी हमने लॉन्च की थी कि हम इसको बनाएंगे, सोचा था हमने, एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड एंड ऑल द 4 शिप्स वुड बी कमीशन बाय 2024। ठीक है। फीचर्स क्या है इनके? फर्स्ट इज दीज आर इक्विप्ड विथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज सैम दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। फीचर्स क्या है आपके प्रोजेक्ट 15B के अंडर जो भी हम बना रहे हैं शिप्स, उनके फीचर्स ये हैं कि फर्स्ट इज these ships would be equipped with BrahMos supersonic cruise missiles and long range SAM that is surface to air missiles. One missile would be BrahMos and the other would be any missile that would be of long range SAM that is surface to air missile. ठीक है, सुपरसोनिक यू अंडरस्टैंड। आजकल हाइपरसोनिक की बातें चल रही है। व्हाट इज सुपरसोनिक? स्पीड साउंड से ज्यादा हो, मोर देन 2.5। सोनिक क्या होता है? सोनिक इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो सोनिक में अगर सोनिक है मींस उसकी जो साउंड स्पीड है वो 1 मैक के इक्वल है। मैक इज द यूनिट। एंड सोनिक सब सोनिक एक होता है। सब सोनिक मीन्स जिसकी जो स्पीड है दैट इज लेस देन 1 मैक हो। सब हो गया ये सब सोनिक। सोनिक इज इक्विवेलेंट टू 1। उसके बाद हमारा आता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक की जिसकी मोर देन 1 हो एंड लेस देन 5। ठीक है, उसके बाद आजकल हम बात करें हाइपरसोनिक की, जैसे चाइना ने बनाया है या रशिया ने लॉन्च टेस्ट किया है, या हम भी हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल्स बना रहे हैं। ठीक है, DRDO हमारा बना रहा है। सो अब हम सुपरसोनिक की नहीं हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। तो हाइपर क्या होंगे? जिसकी स्पीड जो है वो ग्रेटर देन 5 होगी। ठीक है, 5 मैक। मैक इज द यूनिट इन विच वी मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज। ठीक है, ये सब हम एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए बना रहे हैं। आबाद करने के लिए बनाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, पर क्या करें, मजबूरी है, बनानी भी पड़ेगी। ठीक है, सो इस पे जो 2 मिसाइल्स आपकी लगेगी, फर्स्ट इज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जिसकी स्पीड प्रेजेंट है दैट इज अराउंड 2.5 मैक। ठीक है, साउंड से 2.5 गुना तेज। ठीक है, उसकी स्पीड है। एंड सेकेंड इज लॉन्ग रेंज। इसमें कोई भी मिसाइल हो सकती है। लॉन्ग रेंज, जो भी लॉन्ग रेंज की होगी, सैम दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज INS उदयगिरी। INS उदयगिरी, दिस इज INS सूरत अंडर प्रोजेक्ट 15B। नेक्स्ट वी हैव अनदर प्रोजेक्ट जिसके अंडर हमने फ्रीगेट। दिस फर्स्ट वाज सूरत में जो 15B है, दोज वर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स। नाउ दीज आर कॉल्ड फ्रीगेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीगेट एंड डिस्ट्रॉयर? एनीबॉडी, एनी आइडिया? एनी आइडिया किसी को? डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रॉयर एंड फ्रीगेट? कोई आइडिया किसी को? ऑनलाइनर्स, ये जो उदयगिरी है ये आपकी फ्रीगेट है, एंड जो सूरत की बात हमने की दैट वाज, और ऑल द 4 शिप्स अंडर प्रोजेक्ट 15B वर डिस्ट्रॉयर्स। वो बस लड़ने के लिए हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट दीज आर दिस इज अंडर प्रोजेक्ट 15, नॉट 15 बट प्रोजेक्ट 17A। इसके अंडर हम 7 शिप्स बनाएंगे। ठीक है, 7 बेसिकली फ्रीगेट्स बनाएंगे। ठीक है, 7। INS उदयगिरी इज द थर्ड वन। ठीक है, टोटल हम 7 बनाएंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर। ठीक है, एंड रिमेंबर फ्रीगेट एंड डिस्ट्रॉयर का डिफरेंस पहले हम बात कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्टली हमने जो बात की फर्स्ट प्रोजेक्ट 15B, उसमें सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं एंड इसमें सारे के सारे फ्रीगेट्स हैं। So what is the difference between two? In simple terms, difference सिर्फ size and capability की है। ठीक है, so जो आपके destroyers होते हैं basically they are heavy, larger in size। ठीक है,
ठीक है, हैवी होते हैं, मोर फायर पावर होती है इनकी, बिकॉज दीज आर डिस्ट्रॉयर्स, तो इनका काम ही है मार्क करना, ठीक, मोर फायर पावर एंड लार्जर देन फ्रिगेट्स. सो फ्रिगेट इज बेसिकली अ, यू कैन से, सब डिस्ट्रॉयर, ठीक है, विच वुड बी यू नो लेसर इन साइज देन डिस्ट्रॉयर, जिनकी मारक क्षमता कंपेरेटिवली कम होगी, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट द डिस्ट्रॉयर्स फर्स्टली, ठीक है, फायर पावर थोड़ी इनकी कम होगी, प्लस ये स्मॉल होगी कंपेयर टू योर डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है. सो ये चीज याद रखना, साइज के डिफरेंस है, इसकी साइज के साथ साथ कैपेसिटी की भी डिफरेंस है, ठीक है. उसके बाद हाँ, दिस हैज बीन नेम्ड, अब उदयगिरी नाम कहाँ से पड़ा, तो उदयगिरी हैज बीन उदयगिरी इज नेम्ड आफ्टर माउंटेन रेंज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, उदयगिरी. सुना भी होगा, वैसे फेमस है. एंड उदयगिरी जो ये आपकी शिप है, फ्रिगेट है, दैट इज द री इनकारनेशन ऑफ अर्स्टवाइल उदयगिरी. एक उदयगिरी नाम से पहले भी थी, जो अपनी सर्विस जिसने दिया 1976 to 2007, ठीक है, उसके बाद उसको रिटायर्ड कर दिया गया, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव री इनकारनेटेड द सेम उदयगिरी नाउ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थर्ड शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंडर हम टोटल 7 ऑफ शिप्स फ्रिगेट बनाने वाले हैं, ठीक है. एंड दिस हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है. क्लियर? Give the heading, what is project 17A frigates? 17A frigates. Project 17A frigates. So write down. Project 17A frigates are follow on of the P-17 फ्रिगेट्स, ठीक है. तो P-17 प्रोजेक्ट पहले ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने A ऐड किया एंड न्यू वर्जन हमने, ठीक है, हम बना रहे हैं. सो P-17 फ्रिगेट्स, ब्रैकेट में लिखना शिवालिक क्लास, वो सारे शिवालिक वेरिएंट के थे पिछले वाले 17 में जो थे, विद इम्प्रूव्ड स्टेल्थ. ओवर द टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे को नीड फील होती है, उस हिसाब से हम अपग्रेड करते हैं चीजों को, ठीक है. इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स, स्टेल्थ उसमें भी थी, इसमें भी स्टेल्थ है. एडवांस्ड वेपन्स एंड सेंसर्स, कॉमा एडवांस्ड वेपन्स एंड सेंसर्स, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज अ टोटल ऑफ 7 frigates are being constructed. Total of 7 frigates are being constructed, जिसमें से 4 जो है 4+3, जो 4 है वो बना रही है आपकी MDL, दैट इज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDL. 4 would be constructed by MDL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. इट इज बेस्ड इन मुंबई, ठीक है. यू कैन से दीज आर वन ऑफ द PSUs काइंड ऑफ, ठीक है, अंडर योर डिफेंस. द सेकेंड इज, जो 3 है ये कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, GRAC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, GRAC कोलकाता, ठीक है. सो दिस इज कोलकाता बेस्ड, द अदर इज MDS इज योर मुंबई बेस्ड, ठीक है. सो ये 4 और 3 टोटल 7 कंस्ट्रक्शन चल रही है. दिस प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है. प्रोजेक्ट 15B हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट प्रोजेक्ट 17A इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है. Next is simple small topic, that is fortification of rice. Fortification of rice. सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, इससे पहले कि हम राइस पे जाएं, ठीक है. सो फोर्टिफिकेशन क्या होता है एग्जैक्टली? हाँ, सो फोर्टिफिकेशन में ये होता है कि जैसे वी नो कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट माल न्यूट्रिशन
this population having one of the largest malnutrition population. So हम अपनी जनता को कुछ न्यूट्रिशियस फूड जहाँ पे कमी है, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए वी वांट टू प्रोवाइड. सो इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस. फोर्टिफिकेशन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ सम एडिशनल एलिमेंट्स in the form of vitamins or minerals, micronutrients as well. ठीक है, like iodine, zinc, vitamin A, D. ठीक है, टू स्टेपल फूड्स. ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ लोग प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो राइस को हम इसलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज राइस जो है इंडिया में अराउंड 2/3 जनता जो है वो राइस कंज्यूम करती है, एंड पर कैपिटा कंजम्पशन जो राइस की है पर मंथ दैट इज अराउंड 6.8 kgs. ठीक है, so that's why we have opted for rice. ठीक है, by 2024. write down according to the food ministry. According to the food ministry, fortification of rice is a cost effective and complementary strategy to increase vitamins and mineral content, in diets. ठीक है, give the heading need for fortification, need of food fortification. So we know that we have, or India has very high levels of malnutrition. ठीक है, especially among women and children. ठीक है, every second woman in the country is anemic, and every third child is stunted. What is anemic? Yes, HbGC का लो होती है, hemoglobin. I mean basically your red blood cells जो है वो कम बनते हैं. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इज इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स की, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द होल पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, सो वहीं से आपको एनर्जी नहीं मिलती एंड यू ऑलवेज फील टायर्ड, वीक. ठीक है, फटीग. सो वी कॉल दिस सिम्टम एज एनीमिया. ठीक है, एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड. व्हाट इज स्टंटिंग? यस, लो हाइट फॉर एज. ठीक है, उम्र के साथ हाइट कम रह जाए. स्टंट कहते हैं ना कि पेड़ स्टंटिंग है, स्टंटेड है. जैसे वेजिटेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना तो कहते हैं श्रब स्टंटेड है, मींस छोटी हाइट है उसकी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग. ठीक है, सो इसके लिए एक एविडेंस ये है कि करंटली दिस ईयर 2021 में सॉरी, हमारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है दैट इज 101. ठीक है, एंड 2020 में कितनी थी? 94th. So this again shows that how much problem of this undernutrition we have. ठीक है, among the 116 countries 116 में से हमारी जो पोजीशन दैट इज 111 है, जबकि हम इतना प्रोड्यूस करते हैं कि हर साल वेस्ट कर देते हैं, रखने की जगह नहीं होती. So this is a contradictory scenario, right? One hand we are producing this much, every year हम टारगेट बनाते जा रहे हैं कि पिछले साल से प्रोडक्शन इस बारी फूड ग्रेन्स की ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है, बट अगर रैंक देखोगे तो हमारा ऊपर ही जा रहा है. चलो वो सब तो ठीक है अपनी जगह, बट स्टिल हमारे पास इतना तो अन्न है. प्रधानमंत्री जी हमारे को कहते हैं कि WTO अगर अलाउ करे तो हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं, पर हमारे यहाँ के लोगों को खाने की तो दिक्कत हो रही है भाई. तो पहले हम अपने लोगों को ठीक कर लें, उसके बाद बाहर भी बांट देंगे. नो डाउट हमारे पास इतने फूड ग्रेन्स हैं, बट हैं तो पहले अपना भी तो देखेंगे, है ना. चलो नेक्स्ट इज SDRs, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑनलाइनर्स, व्हाट इज इट?
एनीबॉडी ऑनलाइनर्स क्या समझते हो आप एसडीआर से? इसमें 5 मिनट मेरी और रिसेंटली आज कहते हैं एसडीआर तो रीडिंग ऑफ की चाइना की करंसी की वो इंक्रीज कर दी है 10 to 12%। चाइना तो मेरे भी ऐड हुआ रिसेंटली 2016 में ऐड हुआ था बट अभी रिसेंटली तो आज बस 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 उन्होंने आईएमएफ के एसडीआर को 3% इंक्रीज कर एसडीआर क्या है सबसे पहले? Federal type. It is the reserve currency which the IMF hold with them to help other countries, member nations. It is a reserve currency. Yes, sir. It is a reserve currency. Yes, sir. It is neither a currency. No, it's not correct. Unit of pound. Unit of pound. So SDR is basically a unit of account. What is the unit of account? What do you understand by unit of account? कोई idea? हाँ, in which the currencies are basically kept in terms of, yes. So this is on the exchange rate. बस ठीक है, आता है, समझ गया मैं, पढ़ा हुआ है. So this is SDR acts as a unit of account. Remember, always keep in mind this is neither a currency nor a claim by any country upon the on the IMF. ठीक है. So yes, context यही है कि IMF ने अभी अभी युआन जो है और डॉलर से उसकी वैल्यू बढ़ा दी है. ठीक है, इन द बास्केट ऑफ 5 कंट्री दिस करेंसीज. ठीक है, कौन सी करेंसीज है एसडीआर बास्केट में? यूएसए डॉलर, यूरोपियन यूनियन यूरो, स्टर्लिंग ऑफ ब्रिटेन, then yuan of China and yan of Japan. यान नहीं, एन. ठीक है. सो अभी दो जो वैल्यूज हैं उनकी करंट, बेसिकली एसडीआर इज अ बास्केट ऑफ दिस 5 करेंसीज. ठीक है, ठीक है. सो इन 5 करेंसी की जो बास्केट है इसमें दो की वैल्यू इंक्रीज हुई है. यूएस डॉलर की 41 से 43 एंड चाइनीज करेंसी दैट इज युआन की, और जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हुई है? पहले जो डॉलर की वैल्यू थी दैट वाज 41.73, अब ये इंक्रीज होके कितनी हो गई है? 43.38. ठीक है, कहने का मतलब ये कि पांचों जो करेंसीज हैं उसमें से सबसे ज्यादा शेयर किसकी है? तो वो है डॉलर के. उसके बाद युआन आपके तीसरे नंबर पे है, that has been increased from 10.9 to 12.28. ठीक है. सो इतनी इंक्रीमेंट हुई है, 2% की देख सकते हो इसमें, दोनों में ही ऑलमोस्ट 1.5% 2% की. ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ इतना ट्रेंड पता होना चाहिए कि 2 की वैल्यू बढ़ी है, 3 की घटी है. ठीक है, ठीक है. हाँ, so this is a context for us. ठीक है. Now give the heading, what is SDR? What is SDR? Write the first point, SDR is neither a currency nor a claim. इस लाइन को अंडरलाइन करके अच्छे से लिखना, neither a currency nor a claim, बिकॉज ऑप्शन में सीधा आता है कि एसडीआर इज अ करेंसी, नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम. आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमें दो. ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, उस पे हम आएंगे. नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ, नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ, फुल स्टॉप. रादर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम, रादर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज. Rather, it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members, and SDRs can be exchanged for these currencies, ठीक है. सो कोई भी कंट्री सपोज इन 5 करेंसीज के बास्केट के उसमें इन रिटर्न एक्सचेंज कर सकती है. जैसे सपोज हमने इंडियन रूपी, सपोज इसमें क्या है, सिंपल सी बात ये है कि सपोज हमें पेमेंट करनी है डॉलर्स में. ठीक है, यहाँ युआन में करनी है, बट हमारे पास अभी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स में युआन बहुत कम है.
जो हम पे नहीं कर सकते चाइना को, सपोज चाइना को हमने युआन में पे करना है, तो हम क्या करेंगे कि एसडीआर से जितने भी हमारा कोटा बनता है, रिमेंबर ऐसे नहीं कि कुछ भी कितना भी, जितना भी हमारा कोटा है या वोट शेयर है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोटा बनता है, ठीक है। तो कोटा के बेसिस पे कोटा एंड वोट शेयर प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। कोटा आपका डिफाइन करता है वोट शेयर कितनी है आईएमएफ में, तो उसके बेसिस पे हम उस बास्केट से युआन हम ले सकते हैं उतना, जो भी हमारा 2.75% शेयर है, एंड उसके बदले में हम युआन पेमेंट करके रुपी हम दे सकते हैं, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे भी एक इशू है, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे, पॉइंट आएगा, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट, एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, एसडीआर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, Next point, the currency value of SDR, the currency value of SDR is determined by summing the values of क्या लिखा था, summing the values in US dollars, because US डॉलर ही है, एक्सचेंज, हाँ बेस्ड ऑन एक्सचेंज मार्केट, सो इन यूएस डॉलर्स बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ द एसडीआर बास्केट्स। सो उन पांचों करेंसी की जो वैल्यू है हम किस में मेजर करते हैं, टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, ठीक है, बिकॉज एक्सेप्टेबल यही है वर्ल्ड वाइड मोड ऑफ पेमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बीओपी, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं कि देयर आर 5 करेंसीज। चाइना की जो रेनमिनबी है, रेनमिनबी या युआन, ठीक है, रेनमिनबी और युआन, तो ये इंक्लूड किया गया था लास्ट टाइम 2016 में, ठीक है। एंड रिमेंबर हर 5 साल के बाद आईएमएफ अपने एसडीआर को रिव्यू करती है कि बढ़ाना है घटाना है जिसकी भी शेयर है, तो इसी वजह से 2021 में आफ्टर 5 ईयर्स इसकी जो शेयर है वो बढ़ाई गई है, ठीक है। हाँ है, नहीं हमारा एक्सचेंज रेट से ऊपर कैसे जा सकता है, एक्सचेंज रेट अगर 76 का है यूएस डॉलर के बराबर, तो 98 कैसे हो सकता है, पेग तो हम यूएस डॉलर में ही कर रहे हैं ना बास्केट ऑफ दिस एसडीआर्स को, तो हमारा ऑलरेडी एक्सचेंज रेट अगर 76 के अराउंड है इक्वल टू $1, तो हमारा एसडीआर कभी भी उससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना, बिकॉज जो एक्सचेंज रेट है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर ऑलरेडी है ना, और वहां भी पेगिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर ही हो रही है, समझ रहे हो बात, तो उसको हम क्रॉस कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ मार्केट डिटरमिन रेट, ठीक है। इसमें यह है कि जो 5 बास्केट ऑफ, मैंने एग्जांपल दिया था युआन वाला, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे को कोई इशू आ रही है, जैसे इंपोर्ट्स हमने ज़्यादा किया, हमारे पास उस कंट्री का अगर हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट होता है ना, और दिस फॉरेक्स रिजर्व में कंट्री के हाँ बिल्कुल सही, आईएमएफ की फिर श्रीलंका की फिर उतनी वो नहीं है ना, रेपुटेशन नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कंट्री, आपकी स्टैंड, बहुत कुछ मैटर करता है ना आपकी, वो तो दे ही देगा, दोस्त ऐसे ही होने चाहिए ना जो बुरे टाइम पे काम है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एसडीआर करेंसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली, द एसडीआर वैल्यू is calculated, the SDR currency value is calculated daily, the SDR currency value is calculated daily, and the valuation basket of 5 currency is reviewed and adjusted every 5 years. So 5 याद रखना, 5 currency every 5 years रिव्यू करती है इसको, ठीक है। और अभी जो रिव्यू किया है 2021 में, रिमेंबर एसडीआर को 1961 में लॉन्च किया था आईएमएफ ने, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना, 69। कोटा ऑफ अ कंट्री डिनोमिनेटेड इन एसडीआर्स, सो कोटा कैसे होता है, बेसिकली द मेंबर्स वोटिंग पावर इज रिलेटेड डायरेक्टली टू योर कोटास,
ठीक है। इंडिया 2.68 और जो भी एग्जिस्टिंग कोटाज है उसी के प्रोपोर्शन में एसडीआर आपको अलोकेट होती है। ठीक है, रिमेंबर जो इंडिया की कोटा है दैट इज सिंस 2016 में लास्ट टाइम इंक्रीज हुई थी, 0.3 हाँ 0.3 से, एंड करंटली इट इज 2.7 2.75। वोटिंग राइट जो हमारी है दैट इज वोटिंग राइट इंक्रीज हुई थी 0.3 से, दैट वेंट टू 2.6%, एंड जो हमारी कोटा है दैट इज 2.75%। ठीक है, तो चाइना का ऑफ एसडीआर कोटा, चाइना का 6% है। 6%। ठीक है, अब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज्यादा होते हैं, अमाउंट देखोगे तो, फिर गोल्ड की, फिर आपकी होती है FDR फॉरेन रिजर्व पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं आता, FDR फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की, सो उसमें इनकॉर्पोरेट एसडीआर, ठीक है, गोल्ड भी आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आता है, सबसे ज्यादा अमाउंट फॉरेन करेंसी एसेट्स का ही होता है। उसके बाद रिजर्व ट्रांच पोजीशन विद आईएमएफ होता है। नाउ व्हाट इट इज, शेयरिंग रिजर्व ट्रांच पोजीशन ऑफ विद आईएमएफ होता है कि अगर आपने कुछ लेना है, सपोज जो भी आपकी कोटा है जिससे कि आईएमएफ चलता है, हर कंट्री उतनी पैसे देती है आईएमएफ को, सो जो भी आप कोटा अपनी देते हो, जितना भी आपका बनता है उसका 25% जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स पे करना होगा, बाकी 75% यू कैन गिव इट इन योर डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, दैट इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन विद आईएमएफ। ठीक, मॉनेटरी फंड आपको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस ये आईबीआरडी के साथ ही आया, रिमेंबर वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं, आईबीआरडी के साथ 1945। ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे हमारे केन्स वो भी आए थे, अटेंड की थी उस कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो रिपोर्ट पब्लिश करती है, राइट डाउन, रिपोर्ट्स बाय आईएमएफ, रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। ये यूपीएससी डायरेक्टली पूछती होती है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आने का चांस कम है, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, स्टेट वाले भी पूछ सकते हैं। रिपोर्ट्स बाय आईएमएफ, फर्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारी कंट्री में कौन पब्लिश करता है, ये फिस्कल डेवलपमेंट, एफएसडीसी, फिस्कल, हाँ डेवलपमेंट काउंसिल ऐसे है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एफएसडीआर, रिजर्व बैंक। सेकंड इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जहां पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पे वर्ल्ड लगा होगा वो वर्ल्ड बैंक का नहीं होगा, याद रखना। एक आता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वो रिलीज करता है वो वर्ल्ड बैंक, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक जहां आ जाएगा, रिमेंबर कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं, कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि वर्ल्ड है तो यही हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली, एंड दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी अपॉइंट हुए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं भाई? बिल्कुल सही बात है, राजीव कुमार जी। कौन से हैं, कौन से नंबर के हैं ये? यस 25। रिमेंबर अभी तक उल्टा चलता था, 48 चीफ जस्टिस, 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद करने का तरीका। ठीक है, सो अभी हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, सीईसी। ठीक है, सो अभी अभी पिछले आई मीन लास्ट वीक, 2 days बैक, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है राजीव कुमार को एज अ चीफ दिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड ही हैज रिप्लेस सुशील चंद्रा। इनकी जो टेन्योर है वो 24 तक रहेंगे, बहुत ही डिसाइसिव इलेक्शंस होने वाले हैं इस बीच में। इसी ईयर हमारे जुलाई अगस्त में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, जो इलेक्शन कमीशन कंडक्टर आती है। साथ में हमारे 24 के लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, तो इनका टेन्योर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उस सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देख ले, फिर हम इन पे आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सो सबसे पहले आप लोगों को बहुतों को पता भी होगा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन। ठीक है, एस्टेब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं।
इसीलिए क्योंकि उस दिन स्टैब्लिशमेंट हुई थी इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। इट एडमिनिस्टर्स द इलेक्शंस ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये किस किस के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। सो इट एडमिनिस्टर्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्सेप्शन ये है यहाँ पे कि जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के आपके इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऑब्वियसली है। तो पार्ट 15 आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9 डील्स विद योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329 डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट्स एंड पावर एंड एवरीथिंग। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ये है कि इनिशियली स्टार्टिंग में आपकी जो थी दिस वाज वन मैन बॉडी, ठीक है। ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ठीक है। बट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989 अगर आपको ध्यान हो तो ये कोलिशन पीरियड है, यहाँ से इंडिया में कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे एक पार्टी की जो सरकार थी वो यहाँ से लगभग खत्म हो गई थी बननी, ठीक है। एंड यहाँ से पार्टीज बढ़ने की वजह से यहाँ पे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई थी 1989 से, ठीक है। सो यहाँ से 1989 के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, एंड इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है। 1989 ने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। पहले ये ओरिजिनली 1 हुआ करते थी, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना के 1+2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसमें ये कहा गया है कि वुड कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ कमिश्नर्स इफ एनी एज प्रेसिडेंट में फिक्स। सो ये पार्लियामेंट नहीं या इसके लिए कोई कानून नहीं या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन्ड, बट ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ठीक लगता है कि बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गई है कुछ इस तरीके से। सो अभी 3 लोग हैं, 3 को 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है दैट इज 1+2, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। जो टेन्योर है दैट इज 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या होता है कि सपोज 65 नहीं हुए, अगर अभी 63 के ही हैं और वो 6 साल अपनी सेवा दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, तो भी उनको रिटायर्ड माना जाएगा, ठीक है। समझ गए? विच एवर इज अर्लियर ना, आइदर आपने 6 साल कंप्लीट कर लिए या आपकी उम्र हो गई है। ये 3 साल भी हो गए तो फिर हाँ, यहाँ आपने 3 साल में सपोज आप यहाँ पे पहुंचे 63 में तो 2 साल ही रहोगे। इनकी जो सैलरी एंड स्टेटस है, फैसिलिटीज है, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सैलरी 2.5 लाख है आज के डेट में, ठीक है। घबराना नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी की 2.8 है मेरे ख्याल, 2.5 है, इतनी है 2.5, 2.5 लाख, ठीक है। रिमूवल कैसे हो सकती है? दे कैन रिजाइन एनी टाइम, दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, ठीक है। और द सीईसी, नोट सारे, यहीं पे तो ट्रिक है, सीईसी कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द एसी जज, ठीक है। नाउ अब हमें ये समझना जरूरी है कि एसी जज की अगर सेम प्रोसेस है दोनों की, तो क्या प्रोसेस क्या होता है एसी जज की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? रिमेंबर, नॉट ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स बट ओनली एंड ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे, प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। बट सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्योर है और जो टर्म है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है बेसिकली, ठीक है। क्या प्रोसेस है? दैट इज इक्विवेलेंट टू एसी जज, ठीक है, ओनली एंड ओनली ऑफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इक्विवेलेंट है दोनों की। क्या तरीका होता है ये, इसमें यह है कि कुछ हमारे लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स रेजोल्यूशन लाएंगे कि हाँ भाई इनको हटाया जाए, सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये कैपेबल ही नहीं है, ठीक है, बस 2 ही ग्राउंड है जिसके ऊपर आप इनको रिमूव कर सकते हो, इनके पद से हटाया जा सकता है इनको, ठीक है, जजेस को भी। एंड एससी जज की बात करें, हाई कोर्ट के लिए ध्यान रखना। तो फिर क्या होगा, रेजोल्यूशन सबसे पहले लाएंगे राज्यसभा लोकसभा में मेंबर्स, एंड इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, दैट मेजोरिटी शुड बी थोड़ा सा अलग है इसमें। सबसे पहले जो कंडीशन है दैट इज कि जो स्पेशल मेजोरिटी है यहाँ पे वो ये स्पेशल मेजोरिटी फॉर देयर रिमूवल, एंड दैट इज फर्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 500 लोग हैं सपोज, तो 251 लोग चाहिए, राइट, मेजोरिटी के लिए और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब इस 250 में से उस प्रेजेंट जब वोटिंग हो रही होगी तो इस 250 के 2/3 जो हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ गए। फर्स्ट कंडीशन इज कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है, कितने हो गए 251, ठीक है, प्लस 251 तो आपके पास हो ही गए, प्लस जो भी प्रेजेंट होंगे, नॉट नेसेसरली जिस 253, ठीक है, नॉट नेसेसरली 251, ठीक है, बट हो सकता है कि उस टाइम पे प्रेजेंट जो हाउस में हो 200 ही हो, ठीक है, तो 251 तो ही है, ठीक, प्लस आपके जो भी प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट है उनकी 2/3, इन दोनों को मिला के जितनी भी आपकी बनती है संख्या नंबर, उनके आई मीन अगर ये वोट करते हैं फेवर में तो आपको माना जाएगा कि दे आर रिमूव्ड, ठीक है, ज्यादा होने चाहिए ना, पहले तो हाफ है, 251 तो मिनिमम होंगे ना, समझ रहे हो, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 251 तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना कि मेजोरिटी होनी चाहिए, बट ये जरूरी तो नहीं ना कि उस टाइम पे 251 ही प्रेजेंट हो। हाँ तो ग्रेटर तो हो ही गया ना, 251 हो गया तो 500 से तो ज्यादा हो गया है ना, बात तो वही है, घुमा के है। हाँ, ज्यादा का मतलब तो ये हुआ ना कि मेजोरिटी ज्यादा कब होगी, जब आपके मेंबर्स टोटल 500 है, 250 हाफ होगी, एक बंदा ज्यादा होना चाहिए तब मेजोरिटी होगी, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो टोटल बना के जितना भी बनता है वो अगर मानते हैं फेवर में वोट करते हैं तो आपकी रिमूवल होगी, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी नौबत नहीं आई है, पहले ही इज्जत से रिजाइन कर देना चाहिए अगर लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। बेइज्जती कराने से अच्छा है कि इज्जत से रिजाइन कर दो, नहीं, ठीक है। सो रिमूवल इज सिमिलर टू जज। लिमिटेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी इनकी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है इनकी टर्म, हमने ये तो जरूर पढ़ा कि 6 ईयर्स या 6 ईयर्स तक ये रह सकते हैं ऑफिस में, बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेंशन है आपकी इलेक्शन एक्ट 1991 में, इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में मेंशन है कि ये 6 ईयर्स या 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, whichever is earlier, but this has not being specified under constitution, क्योंकि 65 एंड 6 ईयर्स आता है तो हमें तो लगता है कि यार हाँ हमने पढ़ा है, मेंशन तो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, यहीं पे हम फंस जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कहा है कि रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट और कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती, जैसे कैग है, कैग की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती कहीं भी। इलेक्शन शॉर्ट में अगर लिखो तो इलेक्शन एक्ट 1991
बड़े में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर सिक्योरिटी टेन्योर अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे कुछ है एक्ट, ठीक है। शॉर्ट में हम बोले तो इलेक्शन एक्ट 1991। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें मेंशन नहीं है, अबाउट देयर दिस क्वालिफिकेशंस, अबाउट देयर टेन्योर, ठीक है, टर्म और टेन्योर, एंड थर्ड इज अबाउट देयर रिअपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी इनको डिबार नहीं किया, मना नहीं किया, प्रोहिबिट नहीं किया फ्रॉम रीअपॉइंटिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट के उस पर डिपेंड करता है, चाहे तो इनको रीअपॉइंट कर सकती है। पावर्स एंड फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ये हैं कि डिटर्मिन है किनका, दोबारा क्या नहीं हो सकता, किस फॉर्म में? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो अपॉइंटमेंट कॉमन सेंस है कि वो चीफ रह ही चुका है तो उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे नहीं, किसी और में हो सकता है, नॉर्मल कमिश्नर्स की हो सकता है, चीफ की तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। तो चीफ की अगर देखो अभी तो कहीं नहीं होता। ऑब्वियसली जो इलेक्शन कमिश्नर है वो तो चीफ बनेगा ही ना, जैसे ये बने हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है, तो ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। या इलेक्शन कमिश्नर जो है रिटायर्ड हो जाते हैं बिना चीफ बने, तो उनको कुछ और अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं गवर्नमेंट को मना नहीं किया, जैसे कैग में है कि कैग का जो है बंदा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, क्लियर कट मेंशन है। इसमें वही आ जाता है फेवरेटिज्म का कि अगर लगता है कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद जॉब गवर्नमेंट दे देगी कहीं, तो फिर होता है कि यार फिर थोड़ा बंदा पार्शियल हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट है अभिषेक? चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज नहीं, जो सेम कमिश्नर है वो कमिश्नर क्यों बनेगा, वो तो प्रमोट होकर ऊपर ही जाएगा ना। सेम बंदा, अगर आप सेम एक रैंक होल्ड कर रहे हो, उसी रैंक पे आपको दोबारा अपॉइंट क्यों करेंगे? आप खुद भी ये होना चाहोगे, ये तो डिमोशन होगी ना, आपसे फिर पीछे वाले चीफ बन जाएंगे, आप ऐसे ही रह जाओगे, फिर आप भागोगे रिजाइन करके, समझ गए। गवर्नमेंट इनको कहीं और अपॉइंट कर सकती है, ऐसे कोई मेंशन नहीं है, क्लियर कट कुछ भी बना सकती है। कैग अगर एक बार रिटायर्ड हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। ऑनलाइनर्स कोई डाउट है?